Namaskar, viewers. Once again, we have a great achiever with us. I was personally surprised to know that somebody from a very prestigious institute turned into a study of Indian values and Ityas especially. So I have Sushri Ammi Ganatra with me. And I am Ahmedabad product and over 15 years of experience in business strategy. She has worked across four continents and working across a multitude of sectors. Also, a vivid travel. Vivid travel is like she loves to explore places and cultures. Also, she is a seeker. I would not say a student. She is a seeker of Sanskrit and Indian knowledge system. And on personal life, she loves to do yoga. So it's a combination of many good things. And recently, she has ventured into authoring couple of books, which are extremely pertinent to Indian values. And we will know what inspired her to get into this, and also her views and opinion about many other things which we discuss otherwise. So, being a young author and such a explored traveler, what does she think about all these aspects? So, first of all, let me welcome Ami ji. So, swagatam. बहुत बहुत आभार आपका for having me here. I'm just honored to be on this platform. केतकी जी, जहाँ पर इतनी सारी real achievers आई हैं, so yeah, मेरा सौभाग्य है to be talking to you today. आप भी अचीवर है, इसलिए आप यहाँ हैं, और ये मेरा बहुत ही आनंद और एक्साइटमेंट मोमेंट है, आई वुड से, कि आई एम कन्वर्सिंग विद यू. Ami ji, wonderful, and congratulations for your novels first of all. मुझे पहला प्रश्न तो आपको ये पूछना है कि what fascinates Ami, nature or culture? I think coming from the Sanatan background, nature and culture are not dealing, right? Nature impacts your culture and culture impacts the Prakriti as well. And we have always been Prakriti ke pujak. We have always been, our Sanskriti comes from there. So I don't think I can deal in with them at all. For me, Sanskriti matters as much as Prakriti matters. And both of them define the Sanatan Dharma that I come from, that we all come from, we are a part of. बहुत कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं, परंतु हम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते. और हमारे शास्त्रों को जानना इसीलिए भी आवश्यक है कि एक तो हमारा जो रूट है, जो मूल हमारा है, वो क्या है, वो पता चले, हम अपने आप को समझ सके, और विश्व के साथ हमारा जो एंगेजमेंट है वो हम ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा विश्वास पूर्वक कर सके. और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कितनी सारी चीजें हमको जो लगता है, जो पता है, वो है नहीं. और आज के परिप्रेक्ष्य में स्पेशली जब ये नैरेटिव्स, प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा मजबूत है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हिंदू बच्चों को ऐसा अनुभव कराया जाता है कि भाई आप लोग तो जिस संस्कृति से आते हो वह संस्कृति ही मिसोजाइनिस्ट है, वो संस्कृति इनइक्विटी में बिलीव करती है, और वो सब आपके पूर्वजों ने खराब किया. अब ये आप भी वैसे ही संस्कृति से आते हो, तो आपको हमेशा शर्म आनी चाहिए आपके पास, dissociate yourself from it. तो हम जब ये पढ़ने लगे, लोगों को लगा कि यार ये तो इतना सारा है जिसके बारे में हमें बताया नहीं जाता, और कई प्रोपेगेंडा है वो तो सत्य पर आधारित भी नहीं है, बनाए गए ओवर टाइम. वो जो संस्कृति से जुड़ा वो समझ कि भाई हम लोग एक ऐसे धर्म से, ऐसी संस्कृति से आ रहे हैं जिसकी इतनी महान धरोहर है कि आज के समय भी, आज के प्रश्नों के उत्तर भी हमें वो पढ़ने से मिल सकते हैं. That's good. I personally believe कि academics तो बहुत जगह से मिल जाता है. ये जो आपने अभी बात की, जो एस्पेक्ट्स की, वो बहुत जरूरी है लोगों को, खास करके यंगस्टर्स को पता चलने की कि we are really very rich heritage people. And as you rightly said, we are strong in science, we are strong in technology, we are strong in language, we are strong in values. Only thing is we don't know Sanskrit, and hence we are not getting into it, and we are not ready to understand it. And it is very methodically and ideologically kept away from us so that we don't know about it. It's a known fact.
before that, I would like you to tell me that now that you have been talking Sanatana Dharma time and again. So, what is the definition of dharma in your view? तो जनरली धर्म को रिलीजन ऐसा ट्रांसलेट किया जाता है, और अगर रिलीजन अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं कि वी कंपेयर इट विद क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जिनका there is one book which is followed, there is do's and don'ts, there is one God, there is one prophet messenger, जो भी है ना. और पर हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कोई एक भगवान ऐसा नहीं. ऑफ कोर्स वी से ब्रह्मन इवेंचुअली, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना. इतने सारे भगवान है, प्रकृति को पूजा करते हैं, हमारी इतनी सारी पुस्तकें हैं, इतनी हद तक कि जब युधिष्ठिर को पूछा गया कि सही मार्ग कौन सा है, के पंथा, यक्ष प्रश्न में जब आता है कि मनुष्य को कैसा, किस मार्ग पर जाना चाहिए, सही गलत कैसे समझे, और उसमें युधिष्ठिर कहते हैं कि इतनी सारी पुस्तकें हैं, ऋषि इतने सारे हैं, सबके मंतव्य थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, तो सही मार्ग वो है महाजना ये निगता सा पंथा, कि जो लोग जिन्होंने अच्छा काम समाज के लिए करा है वो हमारे लिए जो प्रेसिडेंट छोड़कर गए हैं उस मार्ग पे जाना यही सही मार्ग है. तो हम ऐसे संस्कृति से आते हैं जहां एक पुस्तक नहीं है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग देवता है, अलग अलग रिचुअल्स है, अलग अलग परंपराएं हैं, राइट. तो हम रिलीजन तो नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर धर्म क्या है, और सनातन धर्म की, तो इसका जो डेफिनेशन है ये तो हमको हमारे शास्त्रों में ही मिलता है. पहले हम जो शब्द है उसका अर्थ समझते हैं. धर्म का जो धातु है, जैसे संस्कृत के जितने भी शब्द हैं सबके धातु होते हैं, तो धातु है ध्रुव. ध्रुव धरती का भी धातु, ठीक है. धरती क्या करती है, धरती धारण करती है, धरती के कारण आज हम जीवित हैं. जीवन शक्य ही इसीलिए है क्योंकि धरती से हमको खाना वाना जो भी, ठीक है, धरती धारण करती है. तो धर्म भी है, धर्म का ये है कि धार्यते इति धर्म, जो धारण करता है, ठीक है. धारण करता है, क्या धारण करता है, इस समाज को, इस जीवन को, जिससे वी कैन सर्वाइव, थ्राइव, लिव एंड कंटिन्यू, राइट. दैट प्रिंसिपल व्हिच अलाउज इज कॉल्ड धर्म. अच्छा, व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? जैसे धारण करना मतलब क्या, धारण करने को जब हम ट्रांसलेट करें तो वो होगा टू सस्टेन, that sustains, right? So the sustainability principle is what dharma is. It is not, वो कहते हैं ना सिंगुलर कि ये सही ये गलत ये धर्म, ऐसा नहीं है. धर्म इज एन ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल कि समाज कैसे बढ़ता रहे, समृद्ध होता रहे, आगे बढ़ता रहे, लोग कैसे आगे बढ़ते रहे, और इसीलिए धर्म को हम सनातन कहते हैं, जो हमेशा है. सनातन मतलब जो हमेशा है, जो सत्य है, जो हमेशा है. अच्छा, हमेशा वही हो सकता है जो देश काल के साथ आगे बढ़ सकता है, इवॉल्व हो सकता है ना. धर्म भी हमारा ऐसा है. अगर जो मनुस्मृति की बात करें, जिसको इतनी गालियां दी जाती है, उसमें भी कहते हैं कि मैं भले आपको ये सब बता रहा हूँ कि क्या सही क्या गलत, परंतु इवेंचुअली आपको देश काल के हिसाब से कोई भी जो नियम है वो बनाने चाहिए. धर्म भी वैसा है ना. कुछ मान्यताएं रही होंगी, हम बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं अच्छा आज के परिप्रेक्ष्य में शायद ये सही है, शायद ये नहीं है. मुझे लगता है कई बार हम बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं और जो बिना समझे ही किसी चीज को हम उखाड़ फेंकते हैं, परंतु ये धर्म है, द सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल. और आजकल हम SDGs की बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सारी कंपनियां हैं वो सस्टेनेबिलिटी की बात करती हैं, पर हमारे तो धर्म का अर्थ ही सस्टेनेबिलिटी है. तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. धर्म इज दैट व्हिच अलाउज सस्टेनेबिलिटी. अच्छा, उसके फ्रेमवर्क के अंदर देयर आर सम डूज एंड डोंट्स व्हिच चेंज अकॉर्डिंग टू देश काल. देयर आर ट्रेडिशंस, देयर आर परंपराएं, क्योंकि लोग भी तो रहते हैं ना, समाज तो रहता है. समाज का एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन हो, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस ये सब है, बट दे आर पार्ट्स ऑफ धर्म, दे आर नॉट धर्म ओवरऑल. धर्म इज मच लार्जर देन दिस वर्ल्ड. यस. अच्छा, फिर अब जब बात हो ही रही है तो स्वधर्म का क्या परिभाषा है आपको लगता है? स्वधर्म, अच्छा, तो स्वधर्म मैं समझाऊं उसके पहले हम धर्म को, एक तो हमने धर्म का बड़ा कॉन्टेक्स्ट देखा, ठीक है. अब धर्म को हम हाउ डू वी मेक इट रियल, हमारे लिए इसका क्या है, ठीक है, उससे फिर वो स्वधर्म मेरे ख्याल से अपने आप आ जाएगा. अच्छा, सस्टेनेंस रहे, सस्टेनेबिलिटी रहे,
वो कोई हवा में तो नहीं हो जाएगा, वो हो उसके लिए उस सिस्टम के जो भाग है, जो लोग है ना, कि धरती पर समाज चलता रहे, इसके जो भाग है, जो लोग हैं, उनको कुछ कुछ प्रवृत्तियां ऐसी करनी पड़ेगी जिससे वो चलते रहे। अगर ऐसे काम हो रहे हैं जिससे विनाश हो रहा है ना, तो उनको रोकना पड़ेगा। ऐसे काम है जिससे प्रगति हो रही है, उसको करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कौन करेगा? जो समाज का भाग है, बेसिकली हम है। तो वो धर्म को चलते रहने के लिए, समाज को चलते रहने के लिए हम सब के कुछ ना कुछ कर्तव्य है। ठीक है, केवल राइट्स नहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टू एंश्योर दैट द वर्ल्ड कंटिन्यूज, राइट, द सोसाइटी सर्वाइव्स एंड थ्राइव्स। वो हम कर्तव्य है। अच्छा, अब पूरे समाज या पूरे धरती को चलाने रहने का तो एक बात है। अगर इसको हम अपने परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे परिप्रेक्ष्य में कौन से समाज है, कौन से सिस्टम्स है? हमारा परिवार है, हम जहाँ काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा राष्ट्र है, हमारा नगर है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कुटुंब जो है वो एकत्रित रहे, तो हमारे कुटुंब के प्रति कोई कर्तव्य है। कुटुंब में सबका एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है। अगर सब कहेंगे कि वो माय वे और हाईवे, मैं तो ऐसे ही हूँ और मैं तो ऐसे ही करूंगा या करूंगी, तो कुटुंब एकत्रित नहीं रहेगा, है ना। तो हमको कुछ एडजस्टमेंट्स करके, कुछ अपना चलाकर, कुछ औरों का चलाकर वो कुटुंब को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। कुछ कर्तव्य जो हमारे हैं वो करते रहने पड़ेंगे। उसी तरीके से जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेटिंग पेड फॉर इट, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हमारे जो कर्तव्य है, जो काम है, वो सही से निभाएंगे, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन प्रगति करेगी और हमको भी वहां पे प्रगति हमारी भी होती रहेगी। ठीक है, तो वहां पर भी कर्तव्य की बात आती है। दैट इज आवर ऑर्गेनाइजेशन धर्म। यहाँ पे कुटुंब धर्म, ये सब की बात आती है। अच्छा, उसी तरीके से राष्ट्र धर्म की बात आती है कि हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य क्या है। इस सब के बीच स्वधर्म है ना, क्योंकि कृष्ण कई बार कहते हैं कि आप अपना स्वधर्म करो, बाकी तो छोड़ दो, अपना स्वधर्म क्या है वो करो। स्वधर्म क्या है? क्योंकि अगर मैं कुटुंब का भाग हूं तो मेरा कुटुंब के प्रति भी कर्तव्य है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी कर्तव्य है। तो वैसे देखा जाए तो ये सारे ही मेरे धर्म है। इन दैट सेंस, पार्ट ऑफ माई स्वधर्म आर माई कुटुंब धर्म, माई पुत्री धर्म, माई पत्नी धर्म, माई राष्ट्र धर्म, माई ऑर्गेनाइजेशन धर्म, ऑल ऑफ इट, माई एम्प्लॉय धर्म, है ना। अब ये सब तो है ही। अब इसको मैं किस तरीके से पार करूं? तो मैं जैसे स्वधर्म को समझती हूँ ना कि ये सारे के सारे हम किस तरीके से अच्छे तरीके से निभाएं। कर्तव्य हमारे है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या नहीं अच्छा लगता है, हमारा जो सामर्थ्य है, कैपेबिलिटीज बेसिकली, है ना। प्रकृति इज माय इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, सामर्थ्य इज माय कैपेबिलिटीज एंड कर्तव्य इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सब एकत्रित जब आते हैं किसी जहां पर भी, वो मेरा स्वधर्म है। और वही मेरा स्वधर्म अगर मैं सही से समझूंगी तो मैं मेरे कुटुंब के प्रति मेरे कर्तव्य, मेरे समाज के प्रति कर्तव्य मैं सही से निभा पाऊंगी। तो जैसे जो जापानीज में टर्म है, जैसे इकिगाई कहते हैं ना, कि व्हाट डू यू लव, व्हाट डू यू वांट, व्हाट पेज यू, व्हाट आर योर नीड्स। इसी को ही स्वधर्म उसमें कहते हैं कि ये सब जहां इंटरमिंगल होते हैं वो तुम्हारा स्वधर्म है। बेसिकली देखा जाए तो वही आपकी प्रकृति, सामर्थ्य और कर्तव्य की बात है, जो कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म है। उस हिसाब से जब हम हमारे प्रकृति के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से और कर्तव्य निभाते हुए जब काम करेंगे तो हम हमारा स्वधर्म निभा रहे। ये ऐसे मैं समझती हूँ इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इतने सारे गूढ़ कॉन्सेप्ट है तो मैं ये तो नहीं कह सकती मुझे सब मालूम है, पर इस तरीके से मैं समझती हूँ। I should just underline that. Definitely, it is quite pertinent for the youngsters as you are saying. वो मीनिंग में उसमें से निकाल रही हूँ, क्योंकि जो आजकल एक माइंडसेट हो गया है ना कि आई विल डू व्हाट आई वांट, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है आपका। और आज रथ यात्रा प्रारंभ हुई है जगन्नाथपुरी में, और हम इस अवसर पे बात कर रहे हैं जी, जय जगन्नाथ। और कर्मयोग में ईश्वर ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। तो जो तीसरा अध्याय का जो 22वां श्लोक है वो है, नभे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, परंतु फिर भी
जो काम है वो मैं करता हूँ, आई एंगेज इन टास्क। वाई, वो उसके आगे कहते हैं क्योंकि जो श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं, बाकी लोग जो है वही आचरण को फॉलो करते हैं। लीडर्स सेट अ प्रेसिडेंट, जैसे लीडर्स करते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उसी मार्ग में जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर ने कहा था, हमने जैसे बात करी कि महाजना येन गथा सा पंथा, कि जिस रास्ते से महान लोग गए वही जाते हैं। इसीलिए जो लीडर्स हैं उनके लिए ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वो ऐसे काम करें जिससे लोग अपने जीवन के काम जो सही है उसी मार्ग पर चले। और इनफैक्ट इससे रिलेटेड मैं कहना चाहूंगी कीर्ति जी कि जब राजधर्म की बात आती है जी, राजाओं के लिए, अगर आप देखोगे तो राजाओं के लिए जो सीख दी जाती है वो इतनी ज्यादा, अगर हम देखें तो उनको ये कहा जाता है कि आप हमेशा डिसिप्लिन में रहो। और ऐसे कहते हैं कि प्रजा सुखे सुखम राजे, कि राजा का जो सुख है, प्रजा सुखे सुखम राजे, राजा का सुख केवल प्रजा सुख में, अपना सुख ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा सुख ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रजा के हित में है वही राजा के हित में है, जो प्रजा के सुख में है वही राजा के का सुख है। इसलिए राजा को हमेशा ऐसा ही काम करना चाहिए जो प्रजा के हित में है, भले उसको पर्सनली अच्छा लगे या ना लगे। क्यों? अगेन यही बात ना कि क्योंकि श्रेष्ठ लोग हैं, राजा जैसा करेगा, प्रजा यथा राजा तथा प्रजा। गुड। अभी इससे कनेक्टेड एक प्रश्न आ रहा है मन में कि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जो भी चीज धर्म पे आधारित है, संस्कृति पे आधारित है, वो ज्यादा देर तक सस्टेन करती है, क्योंकि उसको कोई फाउंडेशन होता है, उसका कोई बेस होता है। तो हिंदू मान्यता में हमें स्पिरिचुअलिटी, ये जो वर्ड बड़ा फैशन वाला बना हुआ है, और लोग अभी दूसरे देशों के प्रीचर से स्पिरिचुअलिटी सीखने जा रहे हैं, जो कि हमारी धरोहर है, उसे भूल के हम दूसरे के यहाँ उसको सीखने जा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। अभी तो आ रहे हैं वापस, तो उसमें बुरा मानने वाली बात अभी रही नहीं। लेकिन फिर भी हाउ मच इज स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, नॉट ओनली टू बी रिचुअलिस्टिक बट अदरवाइज ऑल्सो। स्पिरिचुअलिटी को हम जो हमारी भाषा में बात करें तो हम आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म वो जो आत्मा से संबंधित है। और आध्यात्म जो है उसका अगर हम देखें तो जो प्रश्न होता है वो है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का। उस पथ पे जब हम जाते हैं, वो इंक्वायरी जब शुरू होती है कि व्हाट इज द लार्जर गोल बियॉन्ड मैं अभी जो कर रहा हूँ, यहाँ पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है पैसे कमा लिए, वो आवश्यक भी है ना, लौकिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन तो है ही ना। मतलब शरीर एवं खलु धर्म साधन, ये तो हम कहती है कि शरीर के बिना तो हम धर्म का काम भी नहीं कर पाएंगे। तो शरीर का ध्यान रखना ये तो अत्यंत आवश्यक है, पर क्या जीवन में मुझे जो दिख रहा है वो केवल शरीर है क्या? एक तो ये बात समझना, ठीक है। दूसरी बात, शरीर है का अर्थ क्या? हमारे जितने भी कार्य होते हैं जीवन में, वो अधिकतर कार्य हमारे जो पंच इंद्रियां है ना, उनको सेटिस्फाई करने के लिए होती है। मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है, मुझे देखने में क्या अच्छा लगता है ना, मुझे टच करने में क्या अच्छा लगता है, सुनने में क्या अच्छा लगता है। और इसमें हम इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि हमारे लिए वो अच्छा ना भी हो ना तो भी हम करते हैं, पसंद आता है हमें। डिजायर वर्सेस व्हाट आई नीड। पंचेंद्रियों का जो काम है, कर्मेंद्रिय पंचेंद्रिय, जो 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का जो काम है, वो इसलिए ताकि हमारा जीवन चलता रहे। जीवन में जो कार्य है धर्म संबंधित, समाज चलता रहे, वो हम करते रहे। परंतु हम इतने उलझ जाते हैं केवल इंद्रियों में, हमारे सेंसेस में, कि मुझे मालूम है कि मेरे लिए ये डायबिटीज मुझे है और मुझे ये खाने से और हो जाएगा, पेड़ा खाने से या केक खाने से, जो भी, फिर भी मेरा दिमाग, मेरा मन जो है वो मेरी इंद्रियों से इतना ज्यादा हावी हो गया कि मैं खुद भी खा लेती हूँ। मालूम है मेरे लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी मैं करती हूँ। तो जो आध्यात्म का जो मार्ग है, जो समझाते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने मन पर काबू पाओ। अच्छा, मन पर काबू पाओ मतलब क्या? ये जो इंद्रियों का जो माया जाल है उसके पीछे मत भागो। क्या इंद्रियां आप उपयुक्त नहीं? हाँ है, हमको आवश्यकता है उनकी, इसी के कारण हम जी पा रहे हैं, परंतु उसके सेवक मत बन जाओ। वो
आपके सेवक हैं, वो आपके कार्य में मदद कर रहे हैं, उसका वो आप करो, बट डोंट बिकम अ स्लेव टू योर सेंसेस। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जो अध्यात्म की प्रैक्टिस की बात है। क्योंकि जब आपका मन है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जब ये चाहिए वो चाहिए ये वो उसी से केवल हाथ नहीं रहेगा, तो वी विल बी मोर ओपन टू लर्निंग थिंग्स बियॉन्ड व्हाट वी सी। अच्छा, उसकी क्या, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ठीक है, आप देखिए जीवन में ऐसे इतने सारे क्षण आते हैं कि हमको जो हमारे मान्यता के हिसाब से नहीं होते, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है ना। अगर सब कुछ हमारे मन से ही चलता रहेगा, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये मिल जाए और मुझे मिल जाए, मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हो, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे पास जो मुझे अच्छा लगता है वो कभी मुझे छोड़कर ही ना जाए, ऐसा होता नहीं है ना। थिंग्स, इतनी सारी चीजें, भले मनुष्य को लगता है कि मैं चाहूं वो कर सकता हूँ, ऑफकोर्स हम चाहे वो कर सकते हैं, पर उसकी भी एक लिमिट होती है ना, परिश्रम की भी एक लिमिट होती है। ऐसी चीज हो जाती है जो हमारे काबू के बाहर है। जी जी, उन चीजों से हम डील कैसे करें, हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ, वही सबसे आज आप देखो तो इतने सारे मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बिकॉज सबसे पहली बात तो ये ना, मैं चाहती हूँ और वो हो नहीं रहा। आई फील आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई लाइफ, क्योंकि चीजें जो है ना, उसके कारण सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही है। तो जब अध्यात्म में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा, एक तो मेरे हाथ में सब कुछ है नहीं, देयर इज समथिंग लार्जर देन मी। और ये जो छोटे छोटे फेलियर्स अगर होते भी है लाइफ में, तो अगर हम उसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो शायद कोई और मार्ग हमारे लिए है, कुछ और उद्देश्य हमारे लिए निहित है जिसकी ओर हमें आगे बढ़ते जाना है। तो जब वो पर्सपेक्टिव, जो स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म जो कहें, वो हमें वो पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो रोजमर्रा की जो जीवन है उसको भी हम ज्यादा शांति से, ज्यादा समत्व से जी पाते हैं। और जो ऊपर नीचे जीवन में चलते रहता है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि हम उसके पार हो जाते हैं, बट एटलीस्ट मैनेज तो कर पाते हैं। You have to deal with it. It helps us deal with life better. Yes. Of course, there is another aspect of evolved, जो सिद्ध पुरुष है, सिद्ध महिला है, उनकी मैं बात करूं, मैं अपने जैसे जो डॉक्टर है अभी भी absolutely मटीरियलिज्म में अभी भी लिप्त है, उनके बारे में true. And that is very important, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष है उनको तो इस चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम उस बारे में तो विषय में चर्चा कर ही नहीं रहे, हम उन्हीं की कर रहे हैं जो इस स्ट्रगल के साथ जी रहे हैं, अपने आप से फाइट हो रही है, अपने आप से स्ट्रगल हो रहा है, बहुत अशांति है, बहुत एक तरह का स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, और जिसका परिणाम कहीं ना कहीं शरीर पर हो रहा है, स्वास्थ्य पर हो रहा है, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, नहीं कर पा रहे। हम एक अलग इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं जो हमको लगता है the world will acknowledge, है ना? We may not be that, but we live a double life, creating. Yes. So how to get out of it? How do you accept कि नहीं, मैं यही हूँ, ये अच्छा, there is always scope for improvement, है ना? मैं बेटर हो सकती हूँ, मैं जो चाहिए उधर जा सकती हूँ, परंतु उसके पहले मैं क्या हूँ वो तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे अपने आप को फेस तो करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सत्य को तो फेस करना पड़ेगा, है ना? वो शक्ति जो है अपने आप को फेस करने में, बाकी दुनिया तो बाद में आई, वो स्पिरिचुअलिटी मदद करती है डेवलप करने में। वो वो क्या कहते हैं कि परिपक्वता कदाचित एक चैनलाइज थॉट प्रोसेस देती है, एक डायरेक्शन देती है, और जो आपको एक स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मेक यू वीक, इट मेक्स यू स्ट्रांग। Absolutely. It makes you more focused. It makes you more, as you say, appealing and more acceptance and patient. So that you not only know how you are, but you also know the society around you very well, and you also know that you accept them कि ईश्वर सर्वभूताना। तो जब वो पर्सपेक्टिव आ जाता है तो काफी ये जो काम, क्रोध, लोभ, मत्सर जो है, इनका काफी कंट्रोल आ जाता है। और एक बात है ना कि जीवन को, समाज को देखने में हर चीज आप देखो, हम ना हर चीज हम डर डर के करते होते हैं। डर, अच्छा ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे ये प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा, मेरा शादी नहीं हुई तो क्या होगा, है ना? हम हमेशा वो डर मोड में रहते हैं। इसके कारण जो सत्य है उसको भी हम अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि हमेशा डर में है ना? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म जो है, अगेन वहां पर भी हमें करती है कि नहीं, ये सत्य है, ये नहीं है, ये
ऐसा है, एक्सेप्ट इट, राइट? और ये अगर नहीं भी हुआ तो देयर इज मोर टू लाइफ देन दोस स्मॉल, सो बी ग्रेट. I think that is what it is, that there is nothing that you have to lose because तुम्हारा कुछ है ही नहीं eventually. जो तुमको लगता है वो एक मिथ्या है ना कि good point. आप कंट्रोल में हो. Very good point. Very good point. There is nothing to lose. You may have more options if you don't get one. Very true. अच्छा, अब ये जो बात हो ही रही है तो you have traveled a lot and I especially saw your blog space. You have written about many very good things. And what I liked personally is they're very much relating to the today's people, the youngsters. It is not a heavy language. It is not a very complicated terminology. It is not like stupendously something, nothing of that sort. It is the way any normal person will think and see it. That's a very good part. So I congratulate you for that. तो ये ट्रैवल में आपको कहीं ऐसा अनुभव आया जहाँ पे आपको एक प्लेजेंट सरप्राइज मिला हो कि नो टेम्पल लैंड में सडनली अपने भगवत गीता सुन ली हो? बहुत सारे. मुझे तो मतलब मुझे लगता है कि कई बार जब भगवान अनुग्रह हो ना तो आप शायद आपके मन में नहीं है कि आप भगवान को ढूंढ रहे हो, भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आते हैं. आई थिंक इट्स दैट काइंड ऑफ अनुग्रह. इतने सारे ऐसे प्रसंग हैं कि मैं आपको क्या बताऊं. आपने एक जो तरफ से आप हिंट कर रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ. मैं ब्राजील में रहती थी, मैं प्रोजेक्ट के कारण ब्राजील में रहती समय, और नवरात्रि का टाइम था. अच्छा. और आप बाकी कहीं जाओ तो अगर आप यूएस जाओ तो बहुत सारे भारतीय मिल जाते हैं, एशिया, हांगकांग, सब जगह काफी भारतीय. परंतु साउथ अमेरिका में ऐसा नहीं है. आपको भारतीय बहुत कम देखने मिलते हैं. और उसमें नवरात्रि का टाइम तो मैं बहुत मिस कर रही थी फिर. तो मैं सोचा चलो कहीं ढूंढते, कहीं तो कदाचित मंदिर होगा. मैंने गूगल किया और वहां पे एक कहीं तो मंदिर वो इस्कॉन का दिखा रहा था. तो मैंने कहा चलो चलते हैं. तो अच्छा, और ये उस समय की बात है जब शायद संस्कृत अध्ययन वगैरह शुरू हुआ था. ठीक है. आज की अमी और तब की अमी में बहुत फर्क था. तो अज्ञान तो अभी भी है, तब तो बहुत ज्यादा. अज्ञान तो जन्मांतर का है, वो कोई आज की बात नहीं. तो मैंने कहा चलो चलते हैं. तो मैं गई ढूंढते ढूंढते और मुझे कहीं मंदिर दिखाई ना दे. ठीक है, मैं दिखाई पूरा ये. फिर कहीं से तो मुझे कुछ तो ऐसे कुछ संस्कृत चैंटिंग हो रही हो ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा समय आवाज आने लगा. तो मैंने कहा देख रही हूँ. तो एक घर था और वहां पे मुझे बाहर बहुत सारे चप्पल दिखाई दिए. तो मैं सोचा अच्छा शायद यही होगा. तो मैं अंदर गई तो एक भी भारतीय नहीं था, पर बहुत सारे जो इस्कॉन के हैं कृष्ण वो सारे थे. कोई भी एक भी नाम के लिए भारतीय नहीं उसमें. ठीक है. और दो स्वामी वहां बैठे थे और एक स्वामी जो थे वो संस्कृत का चैंटिंग करा रहे थे और पोर्चुगीज में उसे ट्रांसलेट कर रहे थे. अच्छा, अब मुझे उस समय बाद में मैंने पोर्चुगीज सीखा. मैं वहाँ 6-7, तो ये मेरे ऑलमोस्ट 2nd महीने की बात थी. तो तब तक मुझे पोर्चुगीज आता नहीं था. पर मुझे देखकर एक जो दूसरे स्वामी थे उन्होंने मुझे अंदर बुलाया कि कमेंट करके. अच्छा, ये वहां किसी को इंग्लिश भी नहीं आता था, पर ये स्वामी को आता था क्योंकि बहुत साल मायापुर में रहे भारत में, तो हिंदी भी आती थी. तो बोले आ जाओ. एंड मेरे साथ बोलने लगे कि अच्छा तुम्हें पता है ये क्या है? तो मैंने हाँ गीता है, इतना मुझे समझ में आ रहा है. तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, डू यू नो व्हाट दी संस्कृत वर्सेस मीन? और उस समय मुझे नहीं मालूम था. तो वो मेरे लिए ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में. वहां संस्कृत का श्लोक उच्चारण चल रहा है और यहाँ मेरे लिए वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जा रहे थे. फिर ऐसा हुआ कि वो जो चैंट करा रहे थे उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने देखा कि अच्छा ये लड़की तो भारतीय लग रही है. तो वो एक है ना कि सूत्रे मणिगणाय कि वो श्लोक का ये चल रहा था. उन्होंने मुझे कहा कि वो एक्सप्लेन कर रहे थे सूत्र क्या है, और उन्होंने कहा अच्छा शी इज फ्रॉम इंडिया, शी विल नो. ऐसा कुछ तो बोल के उन्होंने मुझे पूछा. अब भगवान की दया, मुझे सूत्रा का अर्थ मालूम था, पर अगर मुझे शायद पूरा श्लोक पूछे तो मुझे नहीं मालूम था, पर मुझे सूत्र का अर्थ पता था. तो मेरी आई वॉज नॉट कम्प्लीटली एम्बैरेस्ड सो टू से. लाज खरोखर मेरा मुझे बचा लिया कृष्ण ने उस समय. पर उससे ये भी हुआ कि मुझे लगा यार ये पढ़ रहे हैं इतना, ये समझ रहे हैं इतना, और मैं ही अपने आप को नहीं जानती. ऑफ कोर्स मैंने गीता पढ़ी थी पहले एक बार, बट कुछ डिटेल नहीं था. ठीक है. तब से आई थिंक वो जो
कि नहीं नहीं, गीता तो समझना है, पढ़ना है, स्वाध्याय शुरू करना है, वो वहां से मेरा शुरू हुआ। पर कृष्ण तो मुझे बहुत जगहों पर मिल गए, फिर वो इक्वाडोर हो, बोलिविया हो, क्यूबा हो, मैं हवाना में थी और एकदम कोई भी एक भी देसी वहां नहीं था, पर अचानक से एक अफ्रीकन अमेरिकन और एक साउथ अमेरिकन गोरा कोई था, वो लोग हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा चैंट करते करते आए, और आई वाज लाइक अरे ये क्या, और फिर मैं भी उनके साथ नाची थोड़ी देर वो ये था। तो मतलब और वहां ही नहीं, भारत में भी ऐसे कितने सारे अनुभव हुए हैं कि ऐसे होगा कि अरे आज तो दर्शन हो ही नहीं पाएंगे, या नई जगह गए हैं कि ये मठ गए हैं, आज तो दर्शन हो ही नहीं पाएंगे, पर ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि इतने सुंदर दर्शन, आंखों आंसू पानी आ जाएगा। हाँ, कृष्ण का बहुत बहुत अनुग्रह रहा है, क्या कहूँ। ग्रेस ग्रेस इदम नमो इदम कृष्णाय, सब इदम कुछ कृष्णा, यस, ग्रेस ग्रेस, वो हमें नहीं पता चलता है कहाँ से होता है, वो हो जाता है। अच्छा, अभी $1 बिलियन क्वेश्चन पूछती हूँ। हमारे घरों में भारतीय संस्कृति में रामायण तो वेलकम वेलकम है, पढ़ी जाती है और उसके पठन भी होते हैं, पारायण भी होते हैं घरों में, और एक अपेक्षा होती है कि हर व्यक्ति राम अवतार हो, हर मनुष्य और हर महिला सीता अवतार हो, ऐसी एक धारणा है सभी की। परंतु महाभारत जो है वो कोसों दूर रखा जाता है, क्योंकि कलह नहीं होना चाहिए घर में। तो आपने पहले तो ये धैर्य कैसे किया महाभारत पढ़ने का, और फिर उसको इतने डीप में पढ़ने का, और साथ में उसको लिखने का? पहले तो ये बताइए कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू लर्न महाभारत? कीर्ति जी, ये कितनी बड़ी विडंबना है देखो हमारे समाज की, कि जिस पुस्तक, जिस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है, धर्मशास्त्र, हमने उसी को पढ़ना छोड़ दिया है ना। जहाँ पर कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, जिसके लिए कहा सर्व उपनिषदान दोग्धा है ना, कि सारे उपनिषदों को का दोहन करके जो रस निकाला है, जो दूध निकाला है, वो गीता है। जिस हमें वो मिलता है, हमने उसे पढ़ना छोड़ दिया। मतलब क्या कहे, है ना। पर अच्छा है, अब इतनी मान्यता नहीं है, लोग वापस इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसमें कहीं ना कहीं B.R. चोपड़ा जी का भी हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने सीरियल बनाई। मुझे याद है हम बच्चे थे और 9 बजे से बैठ जाते थे। जी 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 जी। तो आई थिंक हमारे जनरेशन में अधिकतर लोगों का जो महाभारत के प्रति रुचि है वो वहीं से आई है। खैर, तो वो तो बरसों पहले पढ़ा था, पर ये मैंने देखा था कि जब भी महाभारत के बारे में बात हुई तो हमारी अधिकतर जानकारी तो उसी से आती है, महाभारत से। रेफरेंस पॉइंट वही है हमारा। एग्जैक्टली। और बहुत सारी जो पुस्तकें महाभारत के ऊपर लिखी गई है, राधा, जैसे मराठी की एक पुस्तक है मृत्युंजय, ऑफ कोर्स मृत्युंजय वो पुस्तक है ना, जिसमें कर्ण का जो कैरेक्टर है, सभी लोग कर्ण को मृत्युंजय से ज्यादा जानते हैं। जबकि मृत्युंजय और महाभारत में उसका कैरेक्टर बहुत अलग है। हाँ, मृत्युंजय में उसको बहुत अच्छा दिखाया गया है जी। ओके, तो क्या होता है कि हमारी जो समझ अपने बारे में, अच्छा हम महाभारत को धर्म ग्रंथ तो मानते हैं और हम उससे सीख लेने की बात करते हैं, परंतु सीख हम ले क्या जबकि हमारी समझ ही उसके बारे में गलत है ना। तो आप किसी को कहो कि महाभारत में क्या दिखाया गया है, तो वो कहेंगे कि देयर इज नो ब्लैक और व्हाइट, एवरीथिंग इज ग्रे, ऐसी बात है ना। सही गलत कुछ नहीं है, सब में सब कुछ है, सब कुछ ग्रे है, क्या सही क्या गलत कोई कुछ कह नहीं सकता। कई लोग तो ये भी कहेंगे कि पांडव तो एक्चुअली पापी थे और ये कौरव थे वो धर्मनिष्ठ ज्यादा थे, उन्होंने तो कोई छल नहीं किया। कृष्ण है वो छली कपटी है, ऐसी सब हमारी धारणाएं होती थी। और जब भी मेरी महाभारत के विषय में किसी से बात भी हो तो यही सारी बातें होती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि हमारे ऋषि जो है वो क्या ऐसे थे कि जो धर्म नहीं है उसको धर्म बताएंगे, कि जो सही है उसको गलत बताएंगे, गलत है उसे सही बताएंगे। कुछ सही गलत कुछ है ही नहीं, कुछ वैल्यू सिस्टम का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर एक परिवार में जन्मते हो इन द रॉन्ग परिवार तो आपके साथ हमेशा गलत ही होगा। आप अगर एक स्त्री हो तो आपके साथ हमेशा गलत ही होगा। मैंने कहा ऐसा कैसा समाज था। और
ये प्रश्न के कारण मैंने महाभारत पढ़ना शुरू किया। अच्छा। और ये उसी टाइम, मतलब ये तभी भी था जब मैं संस्कृत पढ़ना शुरू कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं व्याकरण व्याकरण शास्त्री बन जाऊं, ये तो इस जीवन में कदाचित बहुत कठिन है, तो एटलीस्ट मैं पढ़ते जाऊं साथ साथ, और वो पढ़ने से मैं समझू। तो ये कारण से मैंने महाभारत पढ़ना शुरू किया कि भाई है क्या, है ना, हम पता तो चले कि धर्मराज को धर्मराज क्यों कहा जाता है, कर्ण के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, द्रौपदी क्या केवल एक हमेशा गुस्से में रहने वाली स्त्री थी, सच्चाई क्या है इस बात की। तो इसलिए मैंने महाभारत पढ़ना शुरू किया। दिस वॉज माई मोटिवेशन। कभी कुछ लिखना है ऐसा कोई प्रयोजन ही नहीं था, सिर्फ समझने का प्रयोजन, क्यूरियोसिटी। और जब देखा कि अच्छा इतना सारा है महाभारत, अगर आप सही से समझे तो हम धर्म को समझेंगे। हम एक्चुअली धर्म अर्थ काम का जो लेसन है, जो व्यास मुनि हमारे लिए देना चाह रहे थे कि क्यों किसी के साथ कैसा होता है, जो कर्म के सिद्धांत की हम बात करते हैं, है ना, वो कैसे अपने जीवन में देख पाते हैं हम, या हाउ इट प्लेज आउट, हाउ इट प्लेड आउट इन द लाइव्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, इसकी सीख हमें उससे मिलती है। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग गोज, नहीं, एवरीथिंग इज ग्रे, ऐसा भी नहीं है, बहुत क्लियर धर्म क्या है अधर्म क्या है उस बात में भी। तो तब फिर मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, और फिर पुस्तक लिखने का तो बस वही कि मेरे ब्लूम्सबरी के पब्लिशर है, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि अच्छा महाभारत के बारे में तो कुछ जानती ही नहीं है, क्योंकि जो लिखा जाता है फिक्शन लिखा जाता है, तो ऐसा कुछ लिखो कि लोगों तक महाभारत का इतिहास पहुंच पाए, विच इज नॉट माई डिटेलिंग, इट इज नॉट माई इंटरप्रिटेशन, जो है व्यास मुनि का है, उसी को मैंने एक इजीली स्टोरी के फॉर्मेट, जो आसानी से समझ आ सके उस फॉर्मेट में डालकर लिखा है। दैट इज हाउ देन द बुक्स हैपन। रामायण का भी ऐसा ही। नहीं, वो तो बहुत शॉर्ट में आपने बता दिया। मैं इस बात से हैरान हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये महाभारत की कथाएं सुनी है, पुस्तकों से बहुत कम लोगों ने पढ़ी है। जो भी है वो ये जो पहला बी.आर. चोपड़ा जी वाला और बाद के जो वर्जन बने हैं वो सारे टीवी के रेफरेंसेस है, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली रामायण का भी वही कथा है कि असली रामायण किसी ने नहीं पढ़ी है, महाभारत तो बहुत दूर की बात है। तो यही है जो हमें टीवी में दिखाए गए, जो कैरेक्टर प्ले किए गए, उसी से हमने रामायण महाभारत बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, अन्यथा उनके घर में इसका पाठन होता है या पारायण होता है, अदरवाइज किसी ने इतने गहरा में जाने की कोशिश नहीं की। पर आपको क्यूरियोसिटी हुई, यहीं पे कहीं ना कहीं कोई कारण है, बिकॉज अदरवाइज नोबडी विल गेट इनटू दिस लर्निंग प्रोसेस। पहले तो संस्कृत सीखो, वही सबसे बड़ा अड़चन, उसके बाद में महाभारत की पढ़ाई करो, वो दूसरा हर्डल। So that is something different. You are destined to make it. Otherwise, it will not happen like this. अच्छा, तो जब महाभारत की आपने पढ़ाई की, तो मैं सारे कैरेक्टर्स की बात तो नहीं करूंगी क्योंकि बहुत बार आप इस विषय पे बोल चुके हैं। मैं ये पूछूंगी कि द्रौपदी जो है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रेखा है महाभारत की, और एकदम कैजुअली लोग बोल देते हैं कि एक महिला के कारण महाभारत हुआ, ठीक है, और उसका इतना एब्रिविएटेड वर्जन हो गया है कि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इन द फैमिली, दे से इट इज बिकॉज ऑफ महाभारत क्रिएटेड बाय दिस सो एंड सो वुमन इन द फैमिली। तो क्या द्रौपदी सचमुच इतनी निगेटिव कैरेक्टर थी या इतनी एग्रेसिव महिला थी कि उसने पूरा महाभारत घटना घटा दी? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। द्रौपदी के बारे में ऐसी मान्यता है कि उसने, उसके कारण महाभारत हुआ। और क्यों वो कहते हैं कि उसने अंधे का पुत्र अंधा कहा। तो, अच्छा, सबसे पहली बात तो अंधे का पुत्र अंधा, ये भारत में कहीं है ही नहीं। क्या बात है। कहाँ से मसाला ऐड हुआ है पता नहीं, बट ये महाभारत में नहीं है। और महाभारत के कोई भी सदर्न, ये दक्षिण वाला, उत्तर वाला, कहीं पर भी ये नहीं, किसी भी वर्जन में नहीं है। ये सब ऐड किया, कहीं से तो ऐड हुआ है बहुत लेट, ये अंधे का पुत्र अंधा। परंतु अगर हम वो एक बात छोड़ भी दें, तो क्या कौरव पांडव का जो कौरव की पांडवों के प्रति जो ईर्ष्या थी, वो क्या द्रौपदी के कारण हुई है? नहीं, पहले से
जो लाक्षागृह वाला प्रसंग था जिसमें दुर्योधन ने पांडवों को जला देने का प्रयत्न किया, जी जी जी, बहुत पहले की बात है। जी जी, भीम को जहर देकर मार देने का जो प्रयत्न हुआ वो भी बहुत पहले की बात है। तो ये द्रौपदी कहाँ आई इसमें, है ना, द्रौपदी यहाँ कहाँ पर आई? इवन तो सबसे पहली बात तो ये कि द्रौपदी के पहले तो जैसे वहां पे पूरी शांति स्थापित थी और इसने आगे महाभारत, ये तो बात है ही नहीं। उनके बीच लड़ाई, जो दुश्मनावट, जो कौरवों को ईर्ष्या थी पांडवों की, वो तो हमेशा थी ही थी, है ना। तो एक तो वो बात है, इसलिए सबसे पहले जो मूल बात है कि उनके बीच दुश्मनावट थी, इस पर दुश्मनावट से भी ज्यादा थी, दोनों के बीच बहुत पहले से थी। करेक्ट। और फिर भी लोग कहते हैं कि अच्छा हो तो भी इसने ये कहा इसलिए फाइनली युद्ध तक पहुंचा, नहीं तो द्रौपदी ने तो ऐसा कहा ही नहीं है। इनफैक्ट कदाचित वो वहां पर उस समय थी भी नहीं, द्रौपदी क्या किसी ने भी नहीं कहा। ऑफकोर्स जब दुर्योधन गिरा तो भीम और वो लोग हंसे, बट अरे हंसे इसके कारण तुम पूरा ये द्यूत क्रीड़ा कराओ, एक स्त्री का वस्त्र हरण करो, ये कहाँ से जस्टिफाइड है? और आप ये देखिए, गलत बात समझने से हम किस तरीके से गलत कंक्लूजन्स पर आते हैं, है ना। हमको लगता है क्योंकि द्रौपदी ने ऐसे कहा तो दुर्योधन का ईगो हर्ट हुआ, इसलिए उन्होंने जो किया वो जस्टिफाइड है। अरे ये तो वही है ना कि आप आतंकवादी हो, आप किसी गरीब के घर में पैदा हो, आपके साथ कुछ गलत हुआ इसलिए आपको हक मिल गया, आप कितने भी लोगों को मार दो, है ना। आज हमारी ऐसी विकृत सोच हो गई है क्योंकि हम ऐसे विकृत कंक्लूजन्स मानने लगे हैं, राइट, क्योंकि वैसे हमें दिखाए जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारी धारणा हो गई है, हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अभी हमको ऐसा कहा जाता है, हम मान लेते हैं, हाँ भाई जी जी बराबर, इसने ऐसे कैसे कह दिया। अरे शब्द आज भी देखिए, हम एक्शन से ज्यादा शब्दों को पकड़ बैठ जाते हैं। कोई किसी को मार आता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसने टीवी पे ऐसे कहा वो पकड़ कर हम बैठ जाते हैं। आप सोचिए क्या ज्यादा किसी कहने से क्या दूसरे व्यक्ति को किसी का गला काटने का अधिकार मिल जाता है? ये क्या जस्टिफिकेशन हुआ, है ना। उसी तरीके से ये जस्टिफिकेशन इतने टाइम से ये लोग महाभारत के लिए भी दे देते हैं। चलो पहला पॉइंट तो निकल गया कि महाभारत द्रौपदी की वजह से नहीं हुई है, मतलब इसका कारण नहीं है। अभी दूसरा, क्या द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न होने के कारण बहुत एग्रेसिव थी? अग्नि से उत्पन्न होने के कारण, अच्छा, अग्नि के जो गुण है, ठीक है, इसमें एग्रेशन तो है, ठीक है, पर अग्नि के गुण में तेजस्विता भी तो उसमें है ना। तो द्रौपदी में वो तेजस्विता थी, हाँ कदाचित थोड़ा सा एग्रेशन भी था, परंतु जो उसके साथ हुआ उसमें अगर वो तेजस्विता नहीं होती तो वो ये चीजें वो सहन ही नहीं कर पाती। वो रजस ऑफकोर्स था, पर वो रजस तेजस्विता वाला था। और इवन अगर आप देखो तो सबसे पहले तो उसको एग्रेसिव क्यों कहा जाता है? दो चीजों के कारण, एक तो वो अंधे का पुत्र अंधा कि वो हंसी, दूसरा कहा जाता है कि उसने कहा कि मैं दुशासन का लहू से मेरे बाल, वो तो बहुत गलत रेफरेंस दिया गया है। हाँ, कि इन सब के कारण उसमें एग्रेशन का ये थोड़ा जाता है, तो वो बात भी गलत है। उसने कभी कहा ही नहीं कि मुझे दुशासन का लहू से मेरे बाल धोने हैं, ये तो वो वेणी संहारम जो नाटक है उसी से ये बात आई है, जो उन्होंने कभी नहीं कहा, ठीक है। इसलिए ये अगर एपिसोड भी आप निकाल दो तो उसमें कौन सी एग्रेशन की बात आ गई? क्या उसके साथ जो गलत हुआ उसके लिए अपने पतियों से कहना कि आप ऐसे हाथ में हाथ धर कर मत बैठे रहो, आपको लड़ाई तो करनी पड़ेगी, ये बात कहना तो कोई एग्रेशन नहीं है, है ना। उसमें भी क्या वो पूरा टाइम उनको यही कह रही है? ऐसा नहीं है। वो बहुत ही समझदार, बहुत ही शास्त्रों को समझने वाली स्त्री थी। आप अगर उसका पूरा डायलॉग्स भी देखो तो वो उल्टा समझाती है कि एक राजा के लिए क्रोध दिखाना और क्षमा देना दोनों ही आवश्यक है। आप केवल एक लोगे तो आपका गलत होगा, ऐसे वो नहीं कहती कि क्षमा होना ही नहीं चाहिए, है ना। इनफैक्ट एंड में जब उसके पुत्रों को अश्वत्थामा ऐसे मार देता है, उनकी नींद में मार देता है, तो वो कहती है कि नहीं मुझे इसका बदला तो चाहिए। तो ये लोग जाते हैं, हम जानते हैं कि वो अश्वत्थामा का मणि लेकर आते हैं, पर अश्वत्थामा को मारते नहीं है। तो भीम वापस आके उनसे कहता है कि ये लो ये मणि, परंतु वो हमारा गुरु पुत्र है और ये युद्ध नहीं है, इसलिए हम उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। और द्रौपदी कहती है कि मैं समझती हूँ जैसे वो आपका गुरु पुत्र है वो मेरे लिए भी उसी स्थान पर है,
इसलिए आपने उसे जो दंड दिया मेरे लिए उतना काफी है, आई गॉट माई क्लोजर, मैं उसका मृत्यु नहीं मांग रही आपसे। इतनी समझ उस दुख के क्षण में भी द्रौपदी में है। ये सब क्योंकि वो अग्नि की तेजस्विता, अग्नि का जो सहन शक्ति उसमें है कि भाई कुछ भी आ जाए नहीं मैं सहन कर लूंगी, उससे वो आती है, जिसके कारण थोड़ा बहुत एग्रेशन तो होगा ही, है ना, वो एस्पेक्ट तो होगा ही, बट दैट अग्नि डज नॉट ओनली मीन एग्रेशन। और हमारे यहाँ तो सबसे जैसे आप कह रहे हो कि हमारा सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक बेस है वो जो भगवत गीता हम कहते हैं उसमें तो कहा है ना, हम वैश्वानर हो, तो वो भी ईश्वर का ही रूप है, तो वो गलत हो ही नहीं सकता है। वो अब वही है कि आपके पास दिया है, अब आप उसको कैसे उसका उपयोग करोगे ये आपके ऊपर है। अग्नि को तो प्रथम देव माना जाता है, माना जाता है। हमारे यहाँ तो सब यज्ञ करने का हमारी संस्कृति है। से देवों तक हमारी आहुतियां पहुंचाने के लिए का काम अग्नि करता है, तो अग्नि को पॉजिटिव एस्पेक्ट में है। जी जी। मैं इस पे आपसे और एक ओपिनियन एक्सपेक्ट करती हूँ कि महाभारत में एक बहुत बड़ा प्रसंग है, हम उस पे चर्चा करेंगे तो हमें और एक एपिसोड करना पड़ेगा, इसलिए हम उस पे चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी थोड़ा सा उसका अंश लेंगे कि यक्ष प्रश्न एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है और वो सबने सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उसके ऊपर हम शायद एक एपिसोड करेंगे ऐसा मुझे लगता है कि जिसमें बार बार एक रेफरेंस आ रहा है कि मनुष्य का जो यक्ष पूछ रहे हैं धर्मराज से कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, तो उसमें बार बार एक रेफरेंस आ रहा है, एक जिसको हम बोलते हैं कि भार्या, भार्या, भार्या शब्द बहुत बार आ रहा है, और देवकृत सखा भार्या, तो कहते हैं कि जो पत्नी का जो धर्म है वो एकदम बराबर वाला है। और हम अभी भी कहते हैं, अभी भी हमारी जो कलयुग में भी जो हमारी मान्यता है या हमारे बड़े लोग कहते हैं कि महिला जो है वो घर को संवारती है, पुरुष चाहे इधर उधर चला जाए लेकिन महिला यदि दृढ़ है और संभाल रही है तो कुटुंब अच्छे से चल जाता है। तो मुझे ये पूछना है कि what is the responsibility of a wife? I'm not saying working woman, housewife. I'm saying what is the responsibility of a wife? आपने जो यक्ष प्रश्न में कहा ना कि भार्या देवकृत सखा, इसका और भी महाभारत में ये कई बार आता है। इनफैक्ट एक जो प्रसंग है, मैं पूरी कहानी नहीं बता रही, पर जो शकुंतला और दुष्यंत की बात है कि दुष्यंत जो है वो शकुंतला को पहचानने से मना कर देते हैं, तो शकुंतला ये बात कहती है कि शास्त्रों का कहना है कि अर्ध भार्या मनुष्य से, एक मनुष्य जो है उसका अर्धांगिनी कहते हैं वो भार्या है, अर्ध भार्या मनुष्य से भार्या श्रेष्ठतम सखा, जैसे देवकृत सखा वो भार्या गृहस्थ की श्रेष्ठतम सखा भार्या है। क्यों? भार्या मूलम त्रिवर्गस्य, त्रिवर्गस्य मूल, त्रिवर्ग मतलब क्या, हम चतुर्विध पुरुषार्थ की बात करते हैं, मोक्ष तो चलो वी कैन नॉट डिसाइड ऑन दैट, दैट्स अ डिफरेंट, बहुत जन्म जन्म लग जाता है, बट जो बाकी है धर्म अर्थ काम, एक भार्या के बिना ये तो होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो अगर धर्मनिष्ठ जीवन एक गृहस्थ को जीना है तो उसको इन सभी के लिए भार्या की आवश्यकता है। काम ऑफ कोर्स, आपकी पीढ़ी कैसे चलती रहे, पुत्र पुत्री आपत्य जो है वो तो भार्या से आने हैं, उनको संस्कार देने का काम, आपके समाज को आपके परिवार को पकड़ के रखने का काम है ना, भारत है। अर्थ चलो उस समय हम देखा जाए तो भले ही पति जो है वो बाहर का काम करते थे, स्त्री जो है वो घर का काम करती थी, क्योंकि आज के वैसे जो पुरुष है वो भी कोई ऑफिस में बैठे कंप्यूटर पर तो काम नहीं करते, नहीं है ना, क्लियर डिविजन ऑफ रोल। तो का जो काम है वो सब करना, जो अर्थ आता है उसको बचा के रखना। तो लक्ष्मी किसे कहा जाता है, हम स्त्री को लक्ष्मी कहते हैं, है ना, भार्या को लक्ष्मी भी कहते हैं, क्योंकि कमाने का काम तो उसने कर दिया, तो उसका परिवार का संचालन कैसे करो, चलाओ कैसे, काम स्त्री का होता था। धर्म का काम एक गृहस्थ कोई भी रिचुअल, कोई भी यज्ञ करता है तो भार्या का एक निश्चित रोल है उसमें। इनफैक्ट ये कहते हैं कि कितने सारे जो यज्ञ है वो एक गृहस्थ अपने पत्नी के बिना कर ही नहीं सकता, आपकी पत्नी के साथ ही आप अपना काम कर सकते हो। तो जो धर्म का काम है, इवन अदरवाइज अगर घर पे भार्या का, आपकी पत्नी का साथ नहीं होगा तो अतिथि सेवा,
माता पिता सेवा वो सब भी कैसे होगा, वो कौन करती है, एक पत्नी ही के भरोसे आप कर पाते हो ना ये सब जो धर्म। तो इन सारे इसमें जो भार्या का धर्म है वो भार्या और पति का धर्म ही एक साथ है कि आप धर्म अर्थ काम में एकत्रित होके एक ऐसा जीवन जियो जो धर्मनिष्ठ हो। इसके लिए आपको जो करना है ना। तो उसके लिए भार्या के क्या उनकी क्या क्या जो कर्तव्य है वो क्या है। एक तो घर को मैं उस समय की बात कर रही हूँ, आज की बात अलग है ना। धर्म और काम तीनों में कि घर में जो है उनकी ढंग से सेवा करना, खाना बना के सबको खिलाना, अतिथियों की सेवा करना, और यही सब पुरुष के भी कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि उनके सब कर्तव्य केवल महिला के हैं, ये सबके कर्तव्य हैं। और इसमें बहुत ही सुंदर प्रसंग है द्रौपदी सत्यभामा संवाद का। मैं डिटेल में नहीं जा रही उसमें, पर मैं दर्शकों से कहूंगी कि आप अवश्य पढ़िए। और इसको मैंने महाभारत अनरावल जो पुस्तक है उसमें भी लिखा है। द्रौपदी बताती है कि उसने किस तरीके से अपने पत्नी होने और रानी होने का कर्तव्य निभाया है। क्योंकि सत्यभामा से पूछती है कि मेरे एक पति है, वो मेरे वश में नहीं रह पाते, तो तुम तो 5 पति तुम्हारे सदैव तुम्हारे जैसे कि वश में है, वो सदैव तुम्हारे ही प्रेम में है, तुम्हें ही साथ सदैव देखते रहते हैं, ये कैसा। तो ऐसा कोई वशीकरण मंत्र है क्या? और द्रौपदी कहती है नहीं, वशीकरण मंत्र नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि मैं अपने जो कर्तव्य है वो निभाती हूँ। और वो बताती है वो कैसे जीती है, वो किस तरीके से उसने उसका जीवन निर्वाह किया है। हमको जो लगता है ना कि अरे इंडिपेंडेंस, वर्किंग वुमेन, ये सब आज की बात है, नहीं। इट्स वर्थ रीडिंग दैट एपिसोड ऑफ द्रौपदी सत्यभामा संवाद। जिससे मैं बार बार कह रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, यू आर आल्सो एकोइंग द सेम पॉइंट कि कहीं भी हमारी संस्कृति में महिला को दुय्यम स्थान नहीं है, शी इज एट पार। और वेद वेदांगों में उन्होंने अपनी श्रेष्ठता का दर्शन दिया हुआ है। काफी ऋषियां जो हमारी थी उन्होंने कंपोज किए हैं सूत्र और श्लोक, तो हम कहीं कम नहीं थे। हम केवल ये एक्सक्यूज लेके बैठे इन दिनों कि हमें कुछ करने नहीं दिया जाता है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग लाइक दिस नाउ आल्सो। इसमें मेरा थोड़ा सा व्यू अलग है कीर्ति जी। शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि हमें दुय्यम स्थान दिया गया। आप धर्मशास्त्रों में देखो ना कहीं कहीं, तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में डेफिनेटली ऐसा लगता है कि स्त्री जो है उसके साथ कहीं ना कहीं उसे जो सारे पुरुषों को अधिकार थे वो नहीं थे। ठीक है, उसका कारण भी ये था क्योंकि उस समय का समाज ऐसा था जो लेबर पर था, आज के समाज के जैसा नहीं था। इसलिए अवश्य कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आज के दिन में हमको लग सकता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्त्री के विरुद्ध अन्याय जैसा है। तो मैं ये बात कहूंगी कि हमारा समाज, हमारा सनातन संस्कृति ऐसी नहीं है जो कहेगी तब था इसलिए आज भी ऐसे करो। जी 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 जी, हम तो देश काल के हिसाब से बदलाव ला रहे हैं, लाते रहे, और वो होते रहे। आज जो आवश्यकता है उस हिसाब से हम बदलाव लाते हैं। तो उस बात को पकड़ के रहने की हमें जरूरत नहीं है। जो ठीक लगे वो रखे, जो ना ठीक लगे वो समझने का प्रयत्न करें, और समझ कर लगे कि अरे ये एकदम गलत है तो कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ कहने नहीं वाला है, आप मान नहीं मानो। ये है कि क्या इतिहास में स्त्री के साथ हमेशा न्याय हुआ है? तो आई थिंक इस बात पे मेरी थोड़ी सी अवश्य मैं आई वुड टेक अ स्टेप बैक एंड से ऐसा नहीं है। स्त्रियों को बहुत सारे अधिकारों के लिए अवश्य लड़ना पड़ा है, आज भी लड़ना पड़ रहा है। तो जो स्त्रियों का स्ट्रगल है वो मैं कम नहीं आती, पर पुरुषों का भी स्ट्रगल है। पुरुषों का क्यों नहीं है? सभी का स्ट्रगल है। एग्जैक्टली, सभी का स्ट्रगल है, परंतु वो जो स्ट्रगल है, ठीक है, जैसे पुरुष का भी है स्त्री का भी है, उसको हमारे शास्त्रों पे थोपने की आवश्यकता नहीं। दैट इज एन ऑनगोइंग स्ट्रगल। वो समाज में ये शास्त्र वाला स्ट्रगल सभी को करना पड़ेगा। करेक्ट, बट द इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट, यस, टुवर्ड्स व्हाट इज द रीसेंट ऑर्डर, वो भी हम लोग ने सबसे अधिक किया है। इनहेरेंटली जो बाकी समाजों में आप देखें, जो तो स्त्री को तो दुय्यम दर्जा ही दिया गया था, जैसे आप कह रहे हो, है ना, कि उनकी साक्ष्य भी आधी मानी जाएगी, उनमें बुद्धि नहीं है, बिल्कुल ऐसा माना जाएगा।
उनको इनहेरेंटली बुरा माना जाएगा। ऐसा तो नहीं था, हम तो स्त्री को देवी मानते हैं, स्त्री को शक्ति मानते हैं। तो ये सब फर्क तो है ही, इसीलिए हमारे जो आज के प्रॉब्लम्स हैं वो हमें हमारे ऋषियों और हमारे शास्त्रों पे थोपने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो इसीलिए है क्योंकि हमने शास्त्रों को समझना छोड़ दिया, समझा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये बात है। तो कल्चरली हिंदू समाज में ऐसा, अरे नहीं, सबसे पहली बात तो रेप इतना बुरा माना गया है कि भीष्म कहते हैं कि आपात धर्म की बात चल रही होती कि आपात धर्म में कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि जो वैसे ना करो, बट उस समय क्योंकि आपके जीवन पर आ गया तो आप कर सकते हो। उसमें भी वो कहते हैं कि उसमें भी जो बलात्कार है वो तो तभी भी परमिटेड नहीं है, इट इज रॉन्ग अंडर एवरी सर्कमस्टेंस, और उसका दंड केवल मृत्यु दंड हो सकता है। अच्छा अमी जी, इतनी अपने महाभारत की इतनी डिटेल सखोल पढ़ाई की है और इतना आपको अपने कष्ट लिए हैं, हैव यू विजिटेड द प्लेस जहाँ पे महाभारत लिखी गई है? I have. Okay. तो please tell about it. तो जो लोक मान्यता है उसके हिसाब से बद्रीनाथ के 3-4 किलोमीटर आगे माणा करके एक जगह है। क्या चीज? माणा करके एक जगह है जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे आती है। मतलब उस तरफ का उत्तराखंड का सबसे आखिर का गांव माना जाता है, बद्रीनाथ से 3-4 किलोमीटर और आगे जाके। अच्छा। तो वहां पर एक व्यास गुफा और एक गणेश गुफा करके है, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो व्यास गुफा है वहां बैठकर व्यास जी ने महाभारत जो अपने बच्चों का इतिहास था, जो कौरव पांडवों का, उसको पोयम के रूप में रचना उसकी की, और वो साथ साथ गणेश जी को बताते गए और गणेश जी ने उसको लिखा। ऑफकोर्स उसके आसपास भी कहानी, बट हाँ, तो वो वहां पर माणा में मानते हैं कि आज भी वो गणेश गुफा है वहां पर, ये व्यास गुफा भी है, और कहते हैं कि यहाँ। तो जब मैं वहां गई तो वो एक ऐसा अनुभव था कि इतने वर्षों पहले जो मेरे युगों पहले जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने इस धरती पर अपने चरण रखे थे, और उस धरती से आज मैं जा रही हूँ। तो हम जो सनातन की बात करते हैं ना, ये सनातन नहीं है तो और क्या है? इतने वर्षों की कंटिन्यूटी, सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी, ये एक है। तो और वो तो बहुत अत्यंत सुंदर जगह है वो। और कहते हैं कि जब स्वर्गारोहण के समय, उस समय भी जो पांडव है वहां से प्रसार हुए, ऐसा भी माना जाता है, बट वो माणा जगह है जहाँ पर कहते हैं कि महाभारत की रचना। पर हाँ, वहां मुझे आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू विजिट दैट प्लेस। अनुग्रह। Last comment on why people should study Ramayana and Mahabharata. What if they don't study, and what if they study? Well, if they don't study, कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, but I'll say there are couple of reasons to study. पहली बात तो actually I'll say 3 things. 1, right? महाभारत रामायण क्या है? हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का उद्देश्य क्या है? ज्ञान जो है वो तो हमको वेदों से, उपनिषदों से भी मिलता है, धर्मशास्त्रों से पता चलता है, क्या करूं नहीं करूं ये उनसे पता चलता है। तो फिर इतिहास क्यों है? What do we learn from history? I always say इतिहास is like a case study. कि थ्योरी जहां तक हो वहां तक ठीक है, पर उसको जब आप प्रैक्टिकली देखो तो हम ज्यादा समझ सकते हैं। तो जो हम ज्ञान समझते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, धर्म अर्थ काम क्या है, इन सब की जो रियलिटी अगर हमें देखनी हो किस तरीके से इट प्लेज आउट इन लाइफ, वो समझने के लिए इतिहास है, ठीक है। तो इतिहास जो है उसको अगर हमको उससे ये सीख लेनी होगी तो हमको इतिहास को जो रूप में है उस रूप में समझना पड़ेगा, रादर देन कहीं सुनी बात, नहीं तो लर्निंग्स वी टेक अवे फ्रॉम इट विल बी गुड। दूसरी बात, आप अगर देखें तो इतिहास में ये जो कथाएं हैं, और अच्छा इतिहास को माइथोलॉजी कहा जाता है, मैं कहना चाहती हूँ कि जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से कहते हैं पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, जो पहले हुआ है वेरी क्लियरली टोल्ड, क्योंकि कथा फॉर्मेट में, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, इसी कथा फॉर्मेट में कहा गया है, बट पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ है उसी पे बेस्ड है। और आप देखो तो रामायण और महाभारत हर समय हर
कैरेक्टर जो है, हर व्यक्ति जो है वो धर्म संकट से जूझ रहा है। और उस धर्म संकट के समय वो क्या ऑप्शन लेता है, क्या निर्णय लेता है, जो डिसीजन लेता है, उससे उसकी और उसके समाज की आगे जो उसका फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो निर्धारित होता है। हमारे जीवन में भी हम सदैव धर्म संकट से जूझ रहे होते हैं। You always have to take decisions, right? How should we take a decision? वो समझने के लिए भी हमें इतिहास का सहयोग, उपयोगिता है। तीसरी बात जो आज के परिप्रेक्ष्य में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इज ओनिंग आवर नैरेटिव एंड नोइंग आवरसेल्फ, राइट? आज हम पर थोपा जाता है कि आप क्या हो। जैसे मैं कह रही थी, आप तो कहा तो समाज ही मिसोजाइनिस्ट है। आज के जो सारे प्रॉब्लम्स इसलिए आपके क्योंकि आपकी संस्कृति ऐसी है ना? इस चीज को अगर हमें बदलना होगा तो सबसे पहले तो हमें हमारा क्या है वो समझना होगा, एंड देन वी विल हैव टू ओन आवर ओन नैरेटिव एंड एसर्ट आवर आइडेंटिटी, बी मोर कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, स्पेशली आज के समाज में जब इतना ज्यादा ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है ना। नहीं तो क्या है, हम अपने आप को कोसते ही रहते हैं पूरा टाइम, अपना बुरा दूसरे का अच्छा, उसी में जीवन निकल जाता है। तो वी विल हैव टू स्टार्ट ओनिंग आवर नैरेटिव, और वो भी तभी होगा जब आप अपना इतिहास पढ़ो। जब नहीं पढ़ोगे तो फिर तो क्या ही बात है, चल ही रहा है। हाँ, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो एनर्जी है वो बहुत एडिक्टिव है, और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी इसमें आए। तो जैसे आप बोल रहे हो, और किसी चीज के लिए नहीं, लेकिन टू एटलीस्ट मेक अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज गुड एंड रॉन्ग एंड व्हाट इज बैड, और व्हाट इज दैट आई ऑलरेडी हैव, आई नीड नॉट creep about it, or I need not look for it outside. At least for that you should know your roots, your origin, and that is nothing but learning your Sanskriti, your language, and your dharma, wearing it, not showing off, wearing it, and proudly wearing it. It's just not talking about it. So wonderful. Dhanyavad, बहुत बहुत धन्यवाद, and see you again. आपका भी बहुत धन्यवाद।